Hello students, today we are going to read the lesson The Third Level, a chapter from Vistas Supplementary Reader which is authored by Walter Braden Jack Finney. Before we start the chapter, let us read a little bit about the author. Initially he was known as John Finney and was born on October 2nd, 1911 and he died on November 14, 1995. He was an American author born in Milwaukee, United States. He is best known for his science fictions and thrillers. Some of his best known books are The Body Snatchers, Time and Again. In 1956, a film was made titled Invasion of the Body Snatchers, which was based on his book The Body Snatchers. Children, he is also the recipient of World Fantasy Award. Let us know a little bit about the theme of the chapter. The theme is science fiction genre of time travel. Means the story deals with the time travel. The protagonist Charlie tries to travel in past. It also deals with the theme of escapism as all-pervasive feeling. All-pervasive means everyone wants to escape from the grim or harsh reality of present-day world, as it is an effort to get a psychological refuge from the grim realities of the present-day world. Psychological refuge means mentally he wants to take a short shelter from the harsh torturing realities of the present day world. So this is the theme. Let us discuss a little bit about the characters in this chapter. Charlie, he is 31-year-old protagonist interested in philately. Now what is philately, children? It is stamp collecting. Philately is stamp collecting. So he is interested in philately. Louisa is his wife. She is simple by nature, very loving and caring. Sam, Charlie's psychiatrist friend. So basically we have three main characters in this chapter. Let us know a little bit about the summary. The story shows the connection between time and space. It is a story about a 31-year-old man named Charlie. एक 31 साल के यंग मैन की कहानी है जिसका नाम है चार्ली. Besides, this is a psychological story that refers to the subway at the Grand Central Railway Station, which takes passengers to Galesburg. ये एक ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन न्यूयॉर्क में जो है उसका थर्ड लेवल की कहानी है. थर्ड लेवल मीन्स तीसरी मंजिल. तो चिल्ड्रन, ग्रैंड लेवल में थर्ड लेवल नहीं है. ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में थर्ड लेवल रियलिटी में नहीं है, लेकिन चार्ली के इमेजिनेशन में वो वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ से वो कहाँ जाना चाहता है? गेल्सबर्ग. गेल्सबर्ग इज़ अ प्लेस वेयर हिज ग्रैंडफादर यूज्ड टू लिव, जहाँ पे उसके दादाजी रहते थे. एंड इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल प्लेस टू लिव, जहाँ पे वो बहुत खुशी खुशी उसके दादाजी रहते थे. तो अभी क्योंकि दिस इज़ द टाइम आफ्टर वर्ल्ड वॉर, 1914 से लेके 1945 तक फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुए, तो ये स्टोरी है 1945 के बाद की. तो द वर्ल्ड वॉज टॉर्चर्ड एंड सफरिंग फ्रॉम द आफ्टर मैथ रिपरकशन ऑफ वर्ल्ड वॉर. जो दुनिया थी वो बहुत सारी परेशानियों से जूझ रही थी उस समय. तो चार्ली जो है वो अपनी परेशानियों से दूर, साइकोलॉजिकली नॉट इन रियलिटी, अगर वो सचमुच में उनसे दूर नहीं भाग सकता तो मेंटली वो ऐसा इमेजिन करता है. एंड वन डे इन हिज हैलुसिनेशन ही रीचेज द थर्ड लेवल. वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है, न्यूयॉर्क सेंट्रल के तीसरी मंजिल पे पहुंच जाता है, जो कि रियलिटी में एग्जिस्टिंग नहीं है, जो वास्तविकता नहीं है. तो let us see what happens next in this chapter. As life in modern world is full of uncertainties, worries, stress, it takes Charlie to a different world, a happier and a peaceful place to live in. But his friends call
इट अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, लेकिन उसके दोस्तों का क्या कहना है कि वो वेकिंग ड्रीम, जागती हुई आँखों से अपनी इच्छा पूर्ति के सपने देख रहा है, जागती हुई आँखों से, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पहुंचता है और उसके बारे में अपने दोस्तों को बताता है जो कि इस दुनिया में है ही नहीं। Let us start reading of the chapter. Before you read, have you ever had any curious experience which others find hard to believe? क्या आपको कभी ऐसा कोई स्ट्रेंज एक्सपीरियंस हुआ है जो कि दूसरे विश्वास नहीं कर सकते आसानी से? तो इफ़ you have experienced anything as such, we'll discuss that in the class. Let us start reading of the chapter. The president of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on the stack of timetable that there are only two. Now children, this is first person narrative. First person narrative means Charlie himself narrates the story. अपने आप वो कहानी बता रहा है कि उसके साथ उस दिन क्या हुआ था। तो वो बता रहा है कि प्रेसिडेंट इज़ द हायर मोस्ट ऑथोरिटी, रेल रोड का हायर मोस्ट ऑथोरिटी है, रेलवे का हायर मोस्ट ऑथोरिटी, और दीज आर द डिफरेंट स्टेशंस। रेल रोड है जो न्यूयॉर्क के हैं, वहाँ के डिफरेंट स्टेशंस हैं। वहाँ की हायर मोस्ट ऑथोरिटी जो है स्वेयर ऑन द स्टैक ऑफ टाइम टेबल, स्वेयर कसम खा के कह सकते हैं, ऑन द स्टैक ऑफ टाइम टेबल मतलब टाइम टेबल के पाइल पे, उसके समूह पे, उसके ऊपर हाथ रख के वो कसम खा सकते हैं, टाइम टेबल के ऊपर हाथ रख के कसम खाते हैं कि न्यूयॉर्क सेंट्रल में, ग्रैंड सेंट्रल में केवल 2 ही मंजिल है, 2 ही लेवल है। बट आई से देर आर 3 बिकॉज आई हैव बीन ऑन द 3rd लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। कहता है कि नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे तीसरी मंजिल भी है, क्योंकि मैं वहाँ हो के आया हूँ, मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। येस, आई हैव टेकन टू द ऑब्वियस स्टेप आई टॉक टू, क्योंकि वो एक अजीब बात थी। सब लोग उसको कसम खा के कह रहे थे कि वहाँ पे केवल 2 ही मंजिल है, लेकिन उसने खुद एक्सपीरियंस किया था कि वहाँ पे तीसरी मंजिल भी है। तो उसने एक जाहिर सी बात है कि सोचा कि साइकेट्रिस्ट को जाके वो दिखाए, तो ऑब्वियस स्टेप लेता है। आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड, अपने एक साइकेट्रिस्ट, दिमाग के डॉक्टर, उसका जो दोस्त था उसको बात करता है। एमंग अदर्स, बाकी लोगों को भी उसने ये बताया, बट अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को भी बताता है। आई टोल्ड हिम अबाउट द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और उसने उसको बताया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जो 3rd लेवल है उसकी बात उसको बताई। एंड ही सेड इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। ही सेड आई वाज अनहैप्पी, और उसका दोस्त जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड होता है वो क्या कहता है, क्योंकि वो दुखी है इसलिए वो ऐसा सोच रहा है, क्योंकि वो अपनी परिस्थितियों से भागना चाहता है, अपनी दुख तकलीफ से भागना चाहता है। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड बिकॉज इट वॉज नॉट रियलिटी। उसकी वाइफ को बुरा लग जाता है तो वो बिल्कुल ओवर रिएक्ट करती है, क्योंकि वो एक हैप्पी मैन था। चार्ली के साथ ऐसा नहीं था कि वो अनहैप्पी था, तो उसकी वाइफ को ये अच्छा नहीं लगता। बट ही एक्सप्लेन्ड दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड द रेस्ट ऑफ इट, एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप। और कहता है कि नहीं, उसका मतलब ये नहीं था कि अनहैप्पी इसके कारण, अपने घर के कंडीशंस के कारण अनहैप्पी है, क्योंकि आज की दुनिया ही ऐसी है कि सभी लोग इनसिक्योर हैं, डर में हैं, क्योंकि युद्ध के कारण उनकी लाइफ में डिसबैलेंस हो गया है, तो वो सभी चिंतित हैं। वेल हु डजंट, और ये भी कहता है कि कौन नहीं इनसिक्योर फील करता है, कौन फियर में नहीं है। पूरी दुनिया में सारे लोग हैं, सबकी ऐसी ही कंडीशन है। एवरीबॉडी, सभी कोई ऐसा ही है। एवरीबडी नो वॉन्ट टू एस्केप बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन चार्ली इसको एनालाइज करता है कि ऐसे तो सभी के साथ होता है, सभी लोग भागना चाहते हैं अपनी रियलिटी से, बट नो वन विजिट्स ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। कोई भी ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन तो नहीं पहुंच जाता उसकी तरह। तो ही वॉन्ट्स टू नो द रियलिटी। नाउ व्हाट हैपन्स चिल्ड्रन, बट दैट्स द रीज़न ही हैड एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्रीड। तो सभी उसकी बात पे सहमत हो जाते हैं कि सब लोग ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन तो नहीं जाते, सभी लोग दुखी हैं, सभी लोग परेशान हैं। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट,
दे क्लेम्ड माई स्टैम्प कलेक्टिंग, लेकिन उन लोग सबका विचार था कि क्योंकि मैं भागना चाहता हूँ अपनी रियलिटी से, इसलिए मुझे ऐसा इमेजिनेशन में, अपने भ्रम में महसूस हो रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन की तीसरी मंजिल पे मैं पहुँच गया था। तो वो ये भी कहते हैं कि माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्ज़ाम्पल दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, और वो ये कहते हैं कि उसका जो स्टैम्प कलेक्टिंग फिलैटली का शौक़ था वो भी एक टेम्पररी रिफ्यूज़ था, अस्थाई तौर पे वो एक शेल्टर लेना चाहता था अपनी रियलिटी से, हार्श रियलिटी से भाग के दूर जाना चाहता है, वो एक कारण है। वेल मे बी बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नी, लेकिन चार्ली इसको एनालाइज इस तरह से करता है कि उसके ग्रैंडफादर को भी स्टैम्प कलेक्टिंग का शौक़ था, लेकिन उस समय तो वो एक बहुत ही शांत और खुशी वाली ज़िंदगी जी रहे थे, तो उन्होंने फिर क्यों स्टैम्प कलेक्टिंग का शौक़ किया। रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज फ्रॉम ऑल आई हेयर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। जब उन्होंने ये कलेक्शन स्टार्ट किया था, फाइलेटली इन फैक्ट हिज ग्रैंडफादर हैड स्टार्टेड, उनके दादाजी ने ही स्टैम्प कलेक्टिंग स्टार्ट किया था। तो चार्ली इसको कहता है, बताता है कि ये क्यों हुआ था, वो तो दुखी नहीं थे, दुनिया से भागना नहीं चाहते थे। तो इसका ये मतलब है कि उसका जो दूसरा शौक़ है, जो उसके दोस्त ब्लेम कर रहे हैं कि स्टैम्प कलेक्टिंग भी एक तरह का एस्केपिज़्म है, रियलिटी से भागने का है, क्योंकि स्टैम्प जो होते हैं वो पास्ट की चीज़ें होती हैं, और पास्ट की चीज़ों में टाइम स्पेंड करना मीन्स वी वांट टू एस्केप फ्रॉम आवर प्रेजेंट टाइम। तो हम अपने प्रेजेंट से भागना चाहते हैं, तो पुरानी चीज़ों के साथ समय बिताते हैं, ये उसके दोस्तों का कहना था। लेकिन चार्ली इसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसके विचार से उसके दादाजी भी स्टैम्प कलेक्टिंग करते थे, लेकिन वो तो दुखी नहीं थे, वो तो अपने प्रेजेंट उनका हैप्पी था, पीसफुल था, तो वो तो भागना नहीं चाहते थे अपनी रियलिटी से। दैट मीन्स this is not right. He doesn't believe in their explanation of his reaching at Grand Central Railway Station's third level. Further, he explains, it's a nice collection too. Blocks of 4 of practically every US issue. First day covers and so on. President Roosevelt collected stamps too, you know. और आगे वो बताता है कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे, और ये कलेक्शन बहुत ही अच्छा है। ब्लॉक ऑफ 4 प्रैक्टिकली एवरी यूएस, कम से कम 4 टिकट हर एक यूएस इशू के, जो भी नए टिकट स्टैम्प निकलते हैं वहाँ पे, उसके हर एक, उसके कलेक्शन में हर एक के कम से कम 4 टिकट उसके पास हैं। फर्स्ट डे कवर, व्हाट डज ही मीन बाय फर्स्ट डे कवर? ही एक्सप्लेन्स लेटर इन दिस फर्स्ट डे कवर. Anywhere here, what happens at Grand Central? One night last summer, I worked late at office. I was in a hurry to get down to my apartment, so I decided to take a subway from Grand Central because it's faster than the bus. Now he starts explaining that the incident which had happened and the day when he had by mistake raced to the third level of Grand Central Railway Station, how it happened. So children, this we'll discuss in our next video. So till then, take care and read well.